हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 30 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सिक्योर्ड सिल्वर मेडल एट द मारूहबा कप, अ टीम इवेंट एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस देश ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम स्पर्धा में मरूहबा कप जो आयोजित हुआ है सर्फिंग से संबंधित, इसमें रजत पदक हासिल किया है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, इंडिया, चाइना या फिर फ्रांस। आपको बताना है मरूहबा कप में जो टीम इवेंट हुआ है उसमें सिल्वर मेडल किस देश ने जीता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जीता है भारत ने। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया वन सिल्वर मेडल एट द मरूहबा कप इन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024, जिसका आयोजन किया गया मालदीव में। सो द इंडियन टीम इंक्लूडेड कमाली पी, अजीज अली, श्रीकांत डी एंड संजय सेलवन। Japan won gold with 58.40 points. India secured silver with 24.13 and Taipei won bronze with 23.93 points. इसके साथ ही चाइना फोर्थ प्लेस पर रहा है और उसका स्कोर रहा है 22.10। India won the Heat 2 semi-final, scoring 32.16, and this win follows India's first ever surfing quota for the Asian Games. Indian surfer Harish Muthu reached the quarterfinals, marking the history for India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which country has Amazon recently launched its AI-powered shopping assistant chatbot, जिसका नाम है Rufus, designed to provide product recommendations, advice and updates to shoppers? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अमेजन ने हाल ही में किस देश में रूफस नाम से अपना एआई संचालित शॉपिंग सहायक चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे खरीदारों को उत्पाद सिफारिशें, सलाह और अपडेट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। आपको बताना है कि अमेजन ने ये जो रूफस नामक चैटबॉट है ये किस देश में लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये लॉन्च किया गया है भारत में। आप यहां देख सकते हैं, Amazon has launched its AI shopping assistant Rufus in India following its debut in the US, and Rufus is now available in beta on the Amazon mobile app. So it provides product suggestions, comparisons, and detailed recommendations based on user queries. And the assistant supports follows-up questions and maintains a conversational tone. So Rufus can be accessed through an icon at the bottom right of the Amazon app screen, and it will be gradually rolled out to more users in the coming week. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Paralympic Games. यहाँ पर पैरा ओलंपिक खेलों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The Paralympic Games are organized by the International Olympic Committee alongside the Olympic Games. Second, the Paralympic Games include events for athletes with physical disabilities, intellectual disabilities, and visual impairments. And third, the Paralympic Games were originally created as a rehabilitation event for World War II veterans. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, पैरा ओलंपिक खेलों से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है।
So Para-Olympic Games are organized by the International Para-Olympic Committee, not International Olympic Committee. And these games are held shortly after the Olympic Games, but they are managed by a separate organization. So the Para-Olympic Games were founded by German-British neurologist Ludwig Guttmann in 1948, and he started the Stoke Mandeville Games, which later evolved into the Para-Olympic Games aimed at rehabilitating spinal injury patients through sports. So इस वर्ष की बात करें तो 28 अगस्त से पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स शुरू हो चुके हैं एंड इंडिया is sending its largest ever delegation of 84 athletes to compete in the 2024 Paris Para-Olympic Games in Paris. Cheer for Bharat ये theme है which aims to rally support and encourage the Indian athletes participating in the Para-Olympics Games. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. India signed the standard operating procedure for exchange of white shipping information with which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, फ्रांस, बांग्लादेश या फिर फिलीपींस. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये समझौता हुआ है भारत और फिलीपींस के मध्य. आप यहां देख सकते हैं Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff and Commandant of Philippines Coast Guard, signed the standard operating procedure for exchange of white shipping information. And the signing of the SOP between Philippine Coast Guard and Indian Navy would facilitate operationalization of information exchange on the merchant shipping traffic, which will contribute to enhanced maritime safety and security in the region. सो फिलीपींस की बात करें तो इसको रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के नाम से जाना जाता है और ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 7,641 आइलैंड्स. सो फिलीपींस की अगर हम बॉर्डरिंग एरियाज की बात करें तो इट इज बाउंडेड बाय द साउथ चाइना सी टू द वेस्ट, फिलीपींस सी टू द ईस्ट एंड सिलेबेसी सी टू द साउथ. इसके साथ ही ये अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है विद ताइवान टू द नॉर्थ, जापान टू द नॉर्थ ईस्ट, पलाऊ टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, इंडोनेशिया टू द साउथ, मलेशिया टू द साउथ वेस्ट एंड वियतनाम टू द वेस्ट. इसके साथ ही चाइना टू द नॉर्थ वेस्ट. सो फिलीपींस जो है ये वर्ल्ड का 12th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और ये अपने डाइवर्स एथनिसिटीज और कल्चर्स के लिए जाना जाता है. फिलीपींस की कैपिटल है मनीला. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Of the 7th and last stealth frigate of Project 17A that was launched recently. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में लॉन्च की गई प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कैलाशगिरी, महेंद्रगिरी, शिवगिरी या फिर भरतगिरी. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो जो लास्ट फ्रिगेट है उसका नाम है महेंद्रगिरी. आप यहां देख सकते हैं The 7th and the last stealth frigate of Project 17A Mahendragiri was launched at Majgaon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai. So under this project, a total of 7 ships were constructed, 4 at Majgaon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, and 3 at Garden Reach Shipbuilders Limited, Kolkata. So the Nilgiri class frigates, formerly classified as the Project 17 Alpha frigates, जिसे हम शॉर्ट में P17A के नाम से जानते हैं,
are a series of stealth-guided missiles frigate built by Majgaon Shipbuilders and Garden Reach Shipbuilders for Indian Navy. और इस प्रोजेक्ट के तहत जो फर्स्ट स्टिल्थ शिप लॉन्च की गई थी उसका नाम रहा है नीलगिरी और इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements about the रेलवे बोर्ड इज आर करेक्ट? सो यहाँ पर रेलवे बोर्ड से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आपके ऑप्शन, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेलवे बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 905 एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड सेकेंड द अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय द रेलवे मिनिस्टर। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं द बोर्ड इज नाउ लेड बाय चेयरमैन हु एक्ट्स एज द सीईओ and who is typically a senior civil servant belonging to the Indian Administrative Services. So this board formulates policies and plans for development and operation of the Indian Railways. अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है because the Appointments Committee of the Cabinet approved the appointment of Satish Kumar as the chairman and CEO of the Railway Board on 27th of August 2024. तो आप ध्यान रखेंगे अब वर्तमान समय में जो रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन हैं सतीश कुमार और इसको फॉर्म किया गया था 905 में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।